اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم کلاس 7 میتھمیٹکس ٹاپک جو ہمارا ہے سمپل ایکویشنز، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ ایکویشن از. ایکویشن کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے ایکویشن کیا ہوتی ہے اور یہ ایکویشن کیسے بنتی ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم عبدالرشید ڈار، ٹیچر گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول لہی کوٹ، زون ماور، ڈسٹرکٹ کپوارہ. تو چلیے ہم تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹ ایکویشن از. ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ فیو بیسک پوائنٹس اباؤٹ ایکویشن. ایکویشن کے بارے میں جب ہم سوچیں گے تو کچھ پوائنٹس ہمیں ڈسکس کرنے ضروری ہیں، جن میں سے پہلا پوائنٹ ہے دیر از ایکوالٹی سائن. جو نشان بنا ہوا ہے آگے بریکٹ میں وہ ایکول ہوتا ہے. وہاں جو ایکویشن ہوتی ہے، ایکویشن میں کہیں پہ وہ ایکول ہوتا ہے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے جو ایکویشن ہوتی ہے اس میں ایک سائن ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے. جس طرح سے ایڈیشن ہوتا ہے، پلس سبٹریکشن ہوتا ہے، ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، ڈویژن ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک سائن ہے ایکوال ٹو. یہ ہوتا ہے اس ایکویشن میں. آگے جا کے ہمیں یہ خود پتہ چلے گا یہ کہاں پہ ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے یہ. نیکسٹ جو ہے دیر آر ٹو سائڈس ان ایکویشن، لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ. جو ایکویشن ہوتی ہے، اب دو چیزیں ہمیں پتہ چلی. ایک اس میں ایکوال ٹو سائن ہوتا ہے ایکویشن میں. دوسرا ایکویشن میں کیا ہوتے ہیں، دو سائڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور دوسرا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ. لیفٹ ہینڈ سائڈ کہاں پہ ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ کہاں پہ ہوتا ہے، ابھی آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، آگے ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلے گا. تو جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں، ایل ایچ ایس. لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ایل ایچ ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ایل ایچ ایس لکھتے ہیں. اور اسی طرح سے جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ کے لیے ہم آر ایچ ایس استعمال کرتے ہیں، شارٹ فارم رائٹ ہینڈ سائڈ آر ایچ ایس، ایل ایچ ایس اینڈ آر ایچ ایس. اس طرح سے یہاں تک ہم نے یہ جان لیا جو ایکویشن ہوتی ہے اس میں ایک سائن ہوتا ہے، از ایکوال ٹو سائن ہوتا ہے. اس میں دو سائڈس ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے، دوسرا رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ایل ایچ ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم آر ایچ ایس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. نمبر 5، the equality sign shows that LHS is equal to RHS. تو کامن سی بات ہے، اگر بیچ میں ایکوال ٹو سائن ہے، از ایکوال ٹو سائن ہے، جو از ایکوال ٹو سائن کا لیفٹ والا سائڈ ہے وہ ہمارا لیفٹ ہینڈ سائڈ بنے گا، اور جو رائٹ والا سائڈ ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ بنے گا. تو ایکویشن کیا بتاتی ہے ہمیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکوال ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. جتنے بھی نمبر لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لکھے ہیں وہ برابر ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ والے میں، اور جتنے بھی نمبر رائٹ ہینڈ سائڈ میں لکھے ہیں وہ برابر ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ. نمبر 6، if there is some other sign between LHS and RHS then it is not equation. ہاں، اگر یہاں پہ بیچ میں کوئی اور سائن ہوگا، مثال کے طور پر ہم گریٹر دین لکھتے ہیں، لیس دین لکھتے ہیں یا کاما لکھتے ہیں. اگر ایک سائڈ میں رائٹ ہینڈ والا سائڈ ہے، دوسرے سائڈ میں لیفٹ ہینڈ والا سائڈ ہے، اور ان کے بیچ میں از ایکوال ٹو نہیں ہے، اور کوئی سائن ہے، گریٹر دین ہے یا لیس دین ہے یا کاما ہے، تو یہ ایکویشن نہیں ہے.
इक्वेशन हम अब उसी को कह सकते हैं जिसके बीच में इज इक्वल टू साइन होगा और उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा. नंबर 7, द इक्वेशन आल्सो कंटेन्स वेरिएबल. वेरिएबल हम किन को कहते हैं? जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट ABCDE जो हम इस्तेमाल करते हैं. हम कहीं पे देखते हैं किताब पर, अपनी बुक पर 3y BX B 3y 4z या 2x ऐसे कुछ निशान देखते हैं हम, जहाँ पे वो अल्फ़ाबेट उनके साथ मिले हुए होते हैं. न्यूमेरिकस के साथ जो अल्फ़ाबेट मिले हुए होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. तो इक्वेशन में वेरिएबल्स का होना भी ज़रूरी है. इक्वेशन में वेरिएबल भी ज़रूरी होने चाहिए. तो यहाँ तक हमने क्या समझा? जो इक्वेशन होती है उसके बीच में एक साइन होता है. हम किस तरह से इक्वेशन को पहचान सकेंगे? अब उसके बीच में एक साइन होगा, इज इक्वल टू का साइन होगा. उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा. लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS से लिखते हैं और राइट हैंड साइड की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं RHS. इसी तरह से इक्वेशन का एक और रूल है. इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होता है राइट हैंड वाले साइड में. तो नेक्स्ट जो इसमें हमने देखा है कि अगर इज इक्वल टू साइन के बगैर ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा बीच में, या कॉमा होगा बीच में, तो वो इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन के बीच में ज़रूर इक्वल टू होना चाहिए. तो इक्वेशन में वेरिएबल्स भी ज़रूरी हैं. मिसाल के तौर पर 2z 4x या 5 + y ऐसी चीज़ें उसमें ज़रूरी होनी चाहिए जो न्यूमेरिकस के साथ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे. तो अल्फ़ाबेटों का वैल्यू हमें निकालना होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वेरिएबल्स भी ज़रूरी होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज़ वन एमंग द टू एक्सप्रेशंस LHS एंड राइट RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट कंटेन वेरिएबल. तो ये वेरिएबल कम से कम एक साइड में होना चाहिए. अगर दोनों साइड में नहीं हो तो कोई बात नहीं, बीच में इक्वल साइन होगा, लेकिन कम से कम एक साइड में ये वेरिएबल्स होने चाहिए. वेरिएबल्स आपके जहन में आया होगा जो हम न्यूमेरिकस के साथ अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए हमने जो पॉइंटर्स जो देखे हैं इनको एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1 जो हमने देखा है, देयर इज इक्वालिटी साइन. इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है. When we use the sign equal, we observe the following. हम कहाँ पे, अगर हम कॉमन सेंस सोच ले लेंगे, ये हम कहाँ पे इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं? इक्वल साइन, इक्वल की बात हम करते हैं, बराबर की बात हम करते हैं, बराबर हिस्सा होना चाहिए, ये इक्वल होता है. ये कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? लेट अस सी सम एग्जांपल्स. When we weight anything in a balance, we say weight if two sides of a balance are equal. अगर हम किसी भी चीज़ को तराजू में तोलते हैं, हम तभी रिज़ल्ट कहते हैं ये 1 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है, जब उस तराजू के दो साइड जो हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे. जब इस तराजू के दो साइड होंगे वो बराबर होंगे. तो इस तरह से हमने यहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल किया है तराजू में. तराजू के दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक साइड में जहाँ पे हमने वो वेट रखा है, दूसरे साइड में जहाँ पे हमने वो चीज़ रखी है जिसको हम तोल रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर आते हैं तब हम कहते हैं ये 1 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है. अगर वो बराबर नहीं है तब हम वेट डिक्लेयर नहीं करते हैं. इसको कहते हैं यहाँ पे हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी नीड 2 वर्कर्स, वी गिव देम इक्वल सैलरी.
हमें अगर 2 वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो इन 2 वर्कर्स को हम बराबर सैलरी देंगे। अगर मान लो एक वर्कर का नाम ए है, दूसरे वर्कर का नाम बी है। ए को अगर हम 500 देंगे दिन का तो बी को भी देने हैं 500। ए को अगर हम 200 देंगे बी को भी देने हैं 200। ए को अगर हम 1000 देंगे तो बी को भी 1000 देना है। तो इस तरह से अगर हमने इक्वल सैलरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया वर्ड, तो ज़रूरी बात है ए इज इक्वल टू बी, तो बीच में इनके इज इक्वल टू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट 100 chocolates among 50 boys. After distribution, each boy got 2 chocolates. We say that 100 chocolates has been distributed equally. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 चॉकलेट हमारे पास थे तो वो 50 लड़कों में हमने बांट दिए, हर एक को 2-2 हिस्से में आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वल का साइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, हर एक को बराबर मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपके जहन में ये आया होगा कि इक्वल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल का मतलब यही होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा वो दोनों बराबर होंगे, उनका वैल्यू बराबर होगा। नंबर सेकंड, देयर आर 2 साइड्स इन इक्वेशन। इक्वेशन में 2 साइड्स होते हैं जो हमने पहले पढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वी से वेट ऑफ इफ 2 साइड्स ऑफ ए बैलेंस आर इक्वल। जो हमने देखा, हम वेट तभी कह सकते हैं जब एक तराजू के दोनों पहलू बराबर होंगे, दोनों साइड बराबर होंगे, राइट हैंड वाला साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ये तब हम वेट डिक्लेयर करते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पे इक्वल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम तराजू की बात करेंगे, साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2। तराजू के एक साइड में हमने वेट कुछ रखा था, 1 किलोग्राम का वेट रखा था या 3 किलोग्राम का या 5 किलोग्राम का। तो तराजू का दूसरा साइड जो है उसमें हमने वो चीज़ रखी थी जो हम तोल रहे थे, जिसका वेट हम कर रहे थे। जब तराजू के दोनों साइड, कौन कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड वाला साइड और राइट हैंड वाला साइड, ये दोनों साइड बराबर होंगे, बीच में जो इक्वल साइन लगा हुआ है बराबर होंगे, तब हम वेट को डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह से जो हमने दूसरी एग्जांपल ले ली है, सैलरी ऑफ वर्कर ए इज इक्वल टू सैलरी ऑफ वर्कर बी। सैलरी ऑफ वर्कर ए, जो आदमी काम कर रहा है जिसका नाम ए है, उसकी सैलरी मान लो अगर 1000 रुपया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में किसकी सैलरी आएगी, वर्कर बी की। बीच में क्या है, इज इक्वल टू। इस तरह से हम यहाँ पे ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि जो इक्वेशन होती है उसके 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड वाला साइड होता है और दूसरा राइट हैंड वाला साइड होता है, और बीच में इज इक्वल टू होता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, चलो इनको हम देख लेंगे। 4y + 3 = 86। ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो इसमें न्यूमरिकस है, 4 है न्यूमरिकस, 3 86 ये न्यूमरिकस है, और इसमें प्लस साइन भी है, इज इक्वल टू साइन भी है। इज इक्वल टू साइन से हमें क्या पता चलता है, जो लेफ्ट हैंड, यहाँ पे 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड वाला साइड है, दूसरा राइट हैंड वाला साइड है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन है। लेकिन अभी भी हमें ये कन्फर्म नहीं है। हमें किस तरह से कन्फर्म होगा, इसमें कम से कम एक साइड में वेरिएबल होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है। गुड, वाई। 4 जो है उसके साथ वाई लगा हुआ है, वाई जो यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो 4y + 3, 4y को अगर हम ऐड करें
सम अप करें इनका तो उनका सम अप जो होगा वो 86 के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे अब हमें साइड्स भी देखने हैं। 4y प्लस 3 ये लेफ्ट हैंड वाला साइड बना और 86 कौन सा साइड बना, राइट हैंड वाला साइड। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम देख लेंगे। 12n इज इक्वल टू 124। तो क्या हम इसको इक्वेशन कह सकते हैं? हाँ, गुड, कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें पहले हमें देखना है इक्वल का साइन है, वो भी है इसमें देखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, इसमें राइट हैंड साइड भी है, इसमें हमें देखना है वेरिएबल है, इसमें वो भी है, n है वेरिएबल इसमें। तो हम कह सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, इज इक्वल का साइन भी है और एक वेरिएबल भी है। तो ये इक्वेशन बनती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 6n माइनस 25। हमने पहले ये कहा कि इक्वेशन में कम से कम एक साइड में वेरिएबल होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसमें जो दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन सा है पहले हम देखेंगे, ये इक्वेशन है कि नहीं। पहले हमें देखना है इसमें इक्वल का साइन है, बिल्कुल है इक्वल का साइन। तो फिर हमें देखना है कि क्या इसमें दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बिल्कुल दो साइड हैं इसमें। तो तीसरी बात क्या देखनी है हमें, इसमें वेरिएबल है या नहीं है। वेरिएबल है, इसमें दोनों साइड पे वेरिएबल है। 4n है, n यहाँ पे वेरिएबल है और 6n है, वहाँ पे भी n वेरिएबल है। तो